اور اب خبریں تفصیل سے۔ وادی کشمیر میں گزشتہ کئی روز سے شدید سردی کے ساتھ ساتھ گھنا کوہرا بھی چھایا ہوا ہے۔ بیشتر مقامات پر صبح سے ہی شام تک کافی کوہرا رہتا ہے۔ آج وادی کے کئی علاقوں میں دن بھر گھنے کوہرے کی وجہ سے معمولات زندگی متاثر ہوئی۔ سری نگر، بارہمولہ قومی شاہراہ اور گلمرگ روڈ پر آج صبح سے ہی کوہرے کی وجہ سے گاڑیوں کی آمد و رفت میں کافی دقتیں پیش آئیں۔ کوہرا اس قدر تھا کہ نزدیک سے بھی ایک دوسرے کو دیکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ کشمیر میں رواں برس موسمی حالات کافی مختلف نظر آ رہے ہیں۔ چند روز وادی کے دیگر علاقوں کی طرح ہی سری نگر میں بھی صبح کے وقت کوہرا چھایا رہتا تھا۔ اس بیچ آج شہر سری نگر میں بھی پورا دن گھنا کوہرا چھایا رہا۔ دوپہر کے بعد سری نگر کے کئی علاقوں میں اس کی وجہ سے دن میں ہی اندھیرا چھا گیا۔ لوگوں کو چلنے پھرنے کے ساتھ ساتھ کئی دیگر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بادشاہ کو راستہ نہیں دکھا رہا، کچھ نہیں دکھ رہا ہے، بہت پریشان ہے۔ اگر یہ حال رہا تو ہم کہاں جائیں گے؟ مجھے آگے دوست کے پاس جانا ہے، ہاتھ سے مجھے دکھا رہا ہے، ادھر نہیں دکھ رہا ہے۔ اب ڈر لگ رہا ہے کہاں جاؤں، مجھے لگتا ہے کہ واپس آپ ہی جانا پڑے گا۔ سر بہت دقت ہے یہاں پہ، آج تک مجھے نہیں لگتا ہے، ہم 5 سال ہو گئے یہاں پہ کبھی اتنی دھند پڑی ہے، اتنا فوگ آیا ہے، اتنی سردی ہے یہاں پہ، بہت زیادہ سردی ہے۔ گلوز موٹے پہنے ان میں بھی سردی رک نہیں رہی ہے، جیکٹ لگائی ہے ڈبل، بہت زیادہ سردی ہے۔ نہیں، اس سے پہلے کبھی نہیں ہم نے دیکھا۔ ویزیبلٹی تھوڑا ہے ڈاؤن۔ کتنا مشکل ہو رہا ہے ڈرائیو کرنا؟ بہت مشکل ہو رہا ہے سر، سامنے سے ایک دم سے گاڑی آتی ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا ہے، یہاں بہت مشکل ہے ڈرائیو کرنا۔ ادھر گھنے کوہرے کی وجہ سے کشمیر میں ہوائی سروس بھی متاثر ہوئی ہے۔ اس دوران گھنے کوہرے اور کم روشنی کی وجہ سے سری نگر کے بین الاقوامی ہوائی اڈے سے گزشتہ 2 روز سے تمام پروازیں منسوخ کرنی پڑی ہیں۔ پروازیں منسوخ ہونے سے مسافروں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ فون پر نیوز 18 نمائندے سمیع اللہ سے بات کرتے ہوئے ایئرپورٹ کے ڈائریکٹر سنتوش دوکے نے کہا کہ گھنے کوہرے اور کم روشنی کی وجہ سے کوئی پرواز لینڈ نہیں کر پائی ہے، اس وجہ سے تمام پروازوں کو منسوخ کرنا پڑا۔ ضلع انتظامیہ اور مغل روڈ ڈویژن نے تاریخی مغل روڈ کو یک طرفہ ٹریفک کے لیے کھول دیا ہے۔ وادی کو راجوری اور پنج اضلاع سے ملانے والی یہ شاہراہ حالیہ برف باری کی وجہ سے بند ہو گئی تھی۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ بھاری برف باری کی وجہ سے مغل روڈ کو بند کرنا پڑا تھا۔ انتظامیہ نے افرادی قوت اور مشینوں کی مدد سے برف کو ہٹا دیا ہے۔ کئی روز کی مشقت کے بعد اس شاہراہ کو یک طرفہ ٹریفک کی آمد رفت کے قابل بنا دیا گیا۔ اسسٹنٹ انجینئر میکینیکل ڈپارٹمنٹ فیاض احمد کا کہنا ہے کہ مغل روڈ کو ٹریفک کی آمد رفت کے قابل بنایا گیا۔ ڈپٹی کمشنر شوپیاں چودھری محمد یاسین نے روٹ کا جائزہ لیا۔ مغل روڈ کو آج تقریباً 34 دنوں کے بعد بحال کیا گیا۔ آج کشمیر سے پنج کی طرف جانے والی چھوٹی گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دی گئی تھی۔ مغل روڈ کی بحالی کی خبر ملنے کے بعد سرنکوٹ کے برامگل علاقے میں بھاری تعداد میں گاڑیاں پہنچ گئی۔ مغل روڈ کے کھل جانے سے لوگوں نے راحت کی سانس لی۔ پی ڈبلیو ڈی میکینیکل ونگ کے اے ای ای کمل جیوتی شرما نے کہا کہ ان کا عملہ اور مشینیں مغل روڈ پر تعینات ہیں۔ یہ ہے کہ 11، 12 اور 13 کو پھر بھی برف باری ہے، بارش بھی ہے، برف باری بھی ہے، اور اس کے بعد دیکھیں گے کتنے دن چلتی ہے، کیسے ہوتا ہے۔ انتظام ہماری مین اینڈ مشینری اوپر ہی ہے، ابھی برہم گلا سے اوپر چندی مڑ میں جہاں اوپر چھتا پانے کے اوپر ہماری مشینیں ادھری ہیں۔ ابھی جب تک روڈ کا کلیئر نہیں ہوتا تب تک ہماری مشینیں وہیں رہیں گی، ہمارے لڑکے اوپر ہی ہیں۔ ہمارے ایمرجنسی میں لڑکے کام کر رہے ہیں، جو بھی گاڑی اوپر کوئی ایسے سلپری کی وجہ سے یا کوہرے کی وجہ سے پھنس جاتی ہے اس کو نکال لیں گے ہم۔ سری نگر کرگل قومی شاہراہ کو 17 دنوں بعد گاڑیوں کے نقل و حمل کے لیے دوبارہ بحال کر دیا گیا۔ گزشتہ ماہ کی 21 تاریخ کو برف باری کی وجہ سے یہ شاہراہ بند ہو گئی تھی۔ اس دوران سینکڑوں مسافر درماندہ ہو گئے تھے۔ منفی درجہ حرارت کے باوجود متعلقہ محکمے نے دن رات کڑی محنت کی اور شاہراہ کو گاڑیوں کی نقل و حمل کے لیے کل بحال کیا گیا۔ آج شاہراہ پر 400 سے زائد چھوٹی گاڑیاں زوجلا کو پار کر کے سونامرگ پہنچ گئی۔ ڈی سی کرگل بصیر الحق چودھری اور ایس ایس پی کرگل ڈاکٹر ونود کمار کی زیر نگرانی میں انڈیا گیٹ کے قریب ٹریفک کو روانہ کیا گیا۔ تقریباً 4000 سے زائد مسافر آج سری نگر پہنچ گئے۔ وادی میں پچھلے چند روز سے صبح کے وقت کوہرے کی وجہ سے سردی کی شدت بھی بڑھ گئی ہے۔ کوہرے اور سردی کے باوجود وادی میں کاروباری سرگرمیاں جاری رہتی ہیں۔ آج بھی
कोहरे के बावजूद श्रीनगर में दुकानें और दीगर कारोबारी सरगर्मियां मामूल के मुताबिक जारी रहीं। श्रीनगर के तिजारती मरकज लाल चौक और हरी सिंह हाई स्ट्रीट में दुकानों के साथ साथ छाबड़ी फरोश भी कारोबार करते नजर आए। संडे मार्केट में भी आज चहल पहल देखने को मिली। सड़कों पर निजी गाड़ियों के साथ साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी नकल हमल जारी रही। श्रीनगर के कई हसास इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती बदस्तूर जारी है। इंटरनेट पर मुसलसल पाबंदी के सबब कश्मीर की मईशत पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। ई कॉमर्स से मुंसलिक तमाम तिजारती और कारोबारी इदारे मुकम्मल तौर पर ठप हैं। ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स और ट्रैवल एजेंसियों की कारोबारी सरगर्मियां भी बंद होकर रह गई हैं। कई अफराद बेरोजगार हो गए हैं। पेश मुदस्सर कादरी की ये रिपोर्ट। अट्ठाईस साल शाकिर हुसैन ने एक कामयाब एंटरप्रेन्योर बनने के ख्वाब को ताबीर बख्शने के लिए कुछ बरस कबल जनूबी कश्मीर का पहला ऑनलाइन शॉपिंग साइट फैब कश्मीर लॉन्च किया और अपने कारोबार को न सिर्फ मुल्क बल्कि बैरून ममालिक तक पहुंचाने में कामयाबी हासिल की। शाकिर का सालाना टर्नओवर औसतन 5 करोड़ रुपए का था, लेकिन वादी में गुज़श्ता 4 माह से इंटरनेट की मुसलसल पाबंदी ने फैब कश्मीर के इस उरूज में कुछ इस कदर रुकावटें हायल की कि इन 4 महीनों में इसका टर्नओवर सिमट कर महज चंद हजार रुपयों तक पहुंच गया। जबकि शाकिर को फैब कश्मीर से जुड़े स्टाफ की तनख्वाहों का इजाफी बोझ भी बर्दाश्त करना पड़ रहा है। शाकिर का कहना है कि इंटरनेट की अदम दस्तयाबी से इनका कारोबार नामुमकिन है, क्योंकि इंटरनेट के जरिए से ही वो कश्मीरी व दीगर मसनूआत को दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में रिहाइश पजीर खरीदारों तक पहुंचा सकते हैं। हमारा जो है काम है ऑनलाइन बिजनेस। हम ऑनलाइन सेलिंग करते हैं, अमेज़ॉन के साथ भी, स्नैपडील, पेटीएम पे भी हम सेल करते हैं। लेकिन लास्ट 4 मंथ से हमें बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। हमारा स्टाफ दिल्ली में है, यहाँ पे है, हमें बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है इस टाइम। इंटरनेट बंद है आज 4 महीने से, हमारा कोई काम नहीं हो रहा है। स्टाफ बैठा हुआ है, जेब से सैलरी देनी पड़ती है, उनका खर्चा भी नहीं निकल रहा है। अभी जो भी है यहाँ पे सब कुछ बंद था अभी तक। अब हम गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि या तो इंटरनेट को बहाल किया जाए। न सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स बल्कि ट्रैवल एजेंसीज, शेयर मार्केट और दीगर पेशावराना कारोबार से जुड़े अफराद को भी इंटरनेट की पाबंदी की मार बुरी तरह से झेलनी पड़ रही है। कश्मीर में औसतन रोजाना 4000 ऑनलाइन शिपमेंट्स डिलीवर हुआ करती थी, लेकिन इंटरनेट बंद होने के बाद ये तिजारत भी बिल्कुल मुनक़ता हो गई है, जिसके बराह रास्त असरात ऑनलाइन सनतों से जुड़े अफराद के रोजगार पर मुरतब हुए हैं। ऐसे में अक्सर तिजारती इदारों ने अपने मुलाजमीन को मजबूरन निकाल दिया है। पिछले 4 महीने से मैंने कोई काम नहीं किया, बिल्कुल बैठा हुआ है। इकोनॉमिकली हम ख़त्म हो चुके हैं यहाँ पे। एक्चुअली यहाँ पे सारे यंग काम कर रहे हैं इसमें, जिनको कंपनी वालों ने बाहर निकाला है। 100-200 में 5-8 बंदे काम करते हैं जो भी दिल्ली में गए हैं। हम उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं अभी, लेकिन हमें इनकम नहीं आ रही है, कुछ पूरे बैठे हुए हैं अभी इस टाइम। हम गवर्नमेंट वाले बोल रहे हैं GST पे करो, मेरा GST का भी पेनल्टी लग गया है, वो बहुत पेनल्टी लग गई है GST। अब बोल रहे हैं GST पे करो, DC ऑफिस में लाइन में बैठना पड़ता है, 7-7 दिन लाइन में बैठना पड़ता है। हम कुछ नहीं कर पा रहे अभी। गुजारिश यही है कि इंटरनेट को बहाल किया जाए और हमारी जो मांगे हैं कम से कम हमें कुछ ना कुछ मुआवजा दिया जाए, ताकि हम अपना बिजनेस जो है वो आगे बढ़ा सकें। एक सरसरी जायजे के मुताबिक वादी में गुज़श्ता 4 माह के दौरान 3.5 लाख अफराद अपने रोजगार से महरूम हो गए हैं, जबकि ई कॉमर्स और रियल एस्टेट से मुंसलिक दीगर शोबों को गुज़श्ता 4 माह के दौरान 3125 करोड़ रुपयों के नुकसानात से दो चार होना पड़ा है। इसी जायजे के मुताबिक कश्मीर में मुख्तलिफ शोबों का कुल 17,900 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जो कि माहिरीन के मुताबिक एक संगीन माशी सूरत हाल का मौजिब बन सकता है। इंटरनेट 5 अगस्त से बैन किया गया, जिसकी वजह से जो हमारा ई कॉमर्स है, क्योंकि इंटरनेट के साथ अब ट्रेड और अदर जो एक्टिविटीज़ है, ह्यूमन एक्टिविटीज़, वो रिलेटेड है। ये एसेंशियल पार्ट बन गया है ज़िंदगी का। बिज़नेस कम्युनिटी है जो कंट्रीब्यूट करते हैं, मतलब जम्मू कश्मीर के इकॉनमी को कंट्रीब्यूट करती है, इक़्तिसादियत को कंट्रीब्यूट करती है, उसमें सोशल डेवलपमेंट भी आती है, तो उसको कंट्रीब्यूट करती है। नेचुरली एक जब ई कॉमर्स सफ़र हो रहा है, जो जम्मू कश्मीर की इकॉनमी है, ये फर्दर डिटेरिएट हो जाएगी अगर ये इंटरनेट बैन यहाँ पे लिफ्ट नहीं की गई।
4 अगस्त के बाद कश्मीर में इंटरनेट की लगातार पाबंदी से तालिब इल्मों के साथ साथ जिंदगी के मुख्तलिफ शोबे भी मुतासिर हुए हैं, जबकि कैशलेस शॉपिंग का अमल भी बुरी तरह से मुतासिर हुआ। दुकानों में नस्ब POS मशीनें भी अब जंगालूदा हो चुकी हैं। ऐसे में अब कश्मीर में इंटरनेट की बहाली का मुतालबा तूल पकड़ता जा रहा है। ताहम सरकार हालात में बेहतरी के दावों के बावजूद इंटरनेट को बहाल करने के लिए हालात को नामौजू करार दे रही है। अनंतनाग से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुदस्सिर कादरी की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त से इंटरनेट बंद होने से आम लोगों को मुश्किलात का सामना है। उधर जम्मू कश्मीर के 15 लाख व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वाले अफराद के अकाउंट अब बेकार हो गए हैं। पेश है जहूर रजवी की ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में मौजूदा हालात के पेश नज़र अगस्त से ही इंटरनेट पर पाबंदी आयद है। एक कौमी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में जम्मू कश्मीर के तकरीबन 15 लाख व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वालों के अकाउंट डीएक्टिवेट हो गए हैं। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में 400 मिलियन व्हाट्सएप अकाउंट हैं। जम्मू कश्मीर में इंटरनेट की अदम दस्तयाबी की वजह से इसका इस्तेमाल नामुमकिन बन गया है। तलबा और कारोबारी अफराद का कहना है कि व्हाट्सएप से उन्हें काफ़ी फ़ायदा हासिल हो रहा था। सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हैं हम न्यूज़ 18 उर्दू का, जिन्होंने हमारा जो GST का मसला था उस मसले को हमारे हायर अथॉरिटी तक पहुंचाकर हमें राहत पहुंचाई। कि इंटरनेट ब्लॉकेड की वजह से हमारे JNK में 1.5 मिलियन व्हाट्सएप यूज़र्स के अकाउंट डीएक्टिवेट हो चुके हैं, क्योंकि या तो उनको अपडेट करना है या फिर से डाउनलोड करना है। और रही हम ट्रेडर्स की बात, तो हमारे भी बिजनेस अकाउंट्स होते थे, ये जो कश्मीर से बाहर नहीं जाना पड़ता था अपने प्रोडक्ट्स की देख रेख के लिए। अब जबकि हमें अब एक छोटी छोटी बात के लिए कश्मीर छोड़ के दिल्ली या मुंबई या गुजरात जाना पड़ता है। जो ये व्हाट्सएप है, इट्स लाइक अ ब्रिज बिटवीन पीपल एंड इट्स इंस्टीट्यूशन। मेरे हिसाब से जो ये व्हाट्सएप है इट्स रियली इम्पॉर्टेंट टूल बिसाइड्स ऑल, सबके लिए, फॉर यूथ, फॉर चिल्ड्रन, मेनली फॉर द यूथ, फॉर एजुकेशन पर्पस। व्हाट्सएप हमारे बहुत इम्पॉर्टेंट एक टूल था जो कि हमें लिंक करवाता था अपने स्टूडेंट, अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स के लिए साथ, अपने टीचर्स के साथ। कोई भी मैसेज होती थी स्कूल आने के रिलेटेड या कोई कुछ इम्पॉर्टेंट कुछ टास्क होते थे तो हम शेयर करते थे अपने उस व्हाट्सएप पे ही, हम एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। लिंक एक बनी थी हमारी। इस ऐप के तर्जुमान का कहना है कि व्हाट्सएप ग्लोबल पॉलिसी के तहत 120 दिन तक ऐप को इस्तेमाल न करने पर ये ऑटोमेटिक तौर पर डीएक्टिवेट हो जाती है। उधर तज्ज़िया निगारों का कहना है कि मौजूदा हालात में व्हाट्सएप का इस्तेमाल नामुमकिन है, मगर ये काफ़ी कारगर ऐप है। तो हर किसी इज़हार को सिक्योरिटी एंगल से नहीं देखना चाहिए, तो उसमें देखना पड़ता है कि भाई इसको कैसे एड्रेस किया जा रहा है। तो उसमें चैलेंजेस हैं, क्योंकि जो चाहे वो सिक्योरिटी चैलेंज हो इंटरनल या एक्सटर्नल, या इकोनॉमिक चैलेंज हो जो अब ग्रो हो रहा है, जो चैलेंज है इकोनॉमिक का या एनवायरनमेंट का है, तो उसमें इन जैसे अवामी राब्ते के जो वेबसाइट्स हैं इनसे सोल्यूशन निकल सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि इनको ही बंद किया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द इंटरनेट सर्विस बहाल की जाएगी और लोग एक मर्तबा फिर व्हाट्सएप समेत दीगर सहूलियात से मुस्तफीद हो जाएंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए ज़हूर रिजवी की रिपोर्ट। के बावजूद कश्मीरी पंडितों की घर वापसी और उनको दोबारा से वादी में बसाने को लेकर खामोशी पर अब कश्मीरी पंडित मायूस होने लगे हैं। कश्मीरी पंडितों ने सरकार को वार्निंग देते हुए ऐलान किया है कि अगर सरकार ने 1 मार्च तक कश्मीरी पंडितों की वादी वापसी की प्लानिंग पेश नहीं की तो कश्मीरी पंडित सरकार के खिलाफ मुहिम छेड़ देंगे। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश पंपोश इंक्लेव में आज कश्मीरी पंडितों की रिकन्सिलेशन, रिटर्न और रिहेबिलिटेशन कमेटी की मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग में कश्मीरी पंडितों के कई सरकर्दा लीडरान ने शिरकत की। देखिए, एक दुर्भाग्य है, पिछले 12 साल NDA सरकार रही है जिन्होंने अपने घोषणा पत्र में हमेशा रखा है कि कश्मीरी पंडितों की और कश्मीरी माइग्रेंट्स की घर वापसी, आज तक वो हुआ नहीं, सपना नहीं हुआ। कहीं पर उन्होंने कोई पॉलिसी भी नहीं बनाई इसके ऊपर। हमने बार बार जाके उनसे गुहार लगाई है कि हमें वहाँ पर रिहेबिलिटेट कीजिए। उन्होंने
एक चीज़ तो किया, जो मनमोहन सिंह सरकार, जो कांग्रेस सरकार में थी, उन्होंने 3000 वैकेंसीज रखी थी और 2015 में उन्होंने उसी को रिपीट करके 6000 वैकेंसीज कर, पर उसके फ्लैट्स है या पॉलिसीज़ जो है वो आज तक सरकार की तरफ से नहीं आए हैं। हमारे यहाँ हम 30 साल से अपनी मातृभूमि से, अपनी जगह से बाहर हैं, सड़कों पे विस्थापित हैं। पिछले 10 साल के दायरे में माननीय अमित शाह जी, प्रधानमंत्री जी कश्मीर इतनी बारी गए, जम्मू इतनी बारी दौरे पे गए, पर हमारे कभी कैंप में कश्मीरी पंडित जो बुरी हालत में रह रहे हैं वहाँ पर कभी नहीं गए। किसी भी अधिकारी ने ये सूझबूझ नहीं रखी कि हमारे जो एक कम्युनिटी है, बड़ी एक स्पेशल रेस है जो पुराने 5000 साल पुरानी है, जो डेथ रेट जिसकी 3 गुना ज़्यादा हो रही है, उस चीज़ को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। कि जब भी हम सरकार के पास जाते हैं कि हमें घर वापसी की बात करें तो हमें चुपके से टाल के बाहर किया जाता है। हमने ये प्रण किया है कि 1 मार्च तक सरकार को हम चेतावनी दे रहे हैं कि हमारे लिए कंप्रेहेंसिव रिटर्न एंड रिहैबिलिटेशन की पॉलिसी दी जाए, और अगर ये पॉलिसी नहीं आती है तो पूरे भारतवर्ष में इंटरनेशनल लेवल पे हम इसका प्रोटेस्ट करेंगे। कोई भी दिल्ली में या बॉम्बे में जो लोग किसी और प्रदेश से जाके काम करते हैं पर घर तो वापस जाते हैं, पर हमारे ऊपर ना आसमान है ना ज़मीन है, तो वापस जाना तो जायज़ रहता ही है। जितने भी कश्मीरी पंडित बाहर गए उन्होंने अपना रोना नहीं रोया बल्कि काम किया, और अपने जिस क्षेत्र में काम किया उसमें काफ़ी बेहतरीन कामयाबी हासिल की। तो अब तो जायज़ है कि वो वापस जाके जो उन्होंने सीखा, जो उन्होंने कमाया, वो अपने वापस जाके उस चीज़ को और ज़्यादा बेहतर उस ज़मीन पर उतार सकते हैं। तो ये दोनों लोगों के लिए, जो वहाँ के अभी लोकल लोग हैं और जो वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो एक सेटअप है, सिस्टम है, उनको भी इस चीज़ को वेलकम करना चाहिए कि कश्मीरी लोग को बुलाया जाए, जो पंडित हैं उनको बुलाया जाए, उनसे कहा जाए आप कंट्रीब्यूट करिए, क्योंकि जिस हद तक आज वहाँ तबाही हुई है उसमें अगर सभी लोग अपनी हिस्सेदारी देंगे तो दोनों कम्युनिटीज़ में एक सद्भाव भी फैलेगा और लोगों को ये भी मालूम होगा कि किस हालात में वो वापस आके वो कुछ अच्छा कर सकते हैं। मंदिरों के शहर कहलाए जाने वाले जम्मू शहर की खूबसूरती को मजीद दोबाला करने के लिए जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक जामे प्रोग्राम शुरू किया है। इसके तहत शहर के मुख्तलिफ मकामात पर पेंटिंग्स वगैरह के जरिए शहर की खूबसूरती को निखारा जा रहा है। पेशी की रिपोर्ट। जम्मू शहर को खूबसूरत और जाजिब नजर बनाने का सिलसिला बच्चों की तरफ से बनाई गई इन पेंटिंग से शुरू हुआ। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने इन दीवारों को खूबसूरत बनाने के लिए बच्चों का एक पेंटिंग मुकाबला मुनक्किद करवाया। इस दौरान बच्चों ने अपने फन का मुजाहरा करके नसीहत आमेज तस्वीर बनाई। बच्चों के इस इक़दाम से मुतासिर होकर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने शहर के दीगर हिस्सों में भी इस तरह की मुहिम का आगाज किया। इस मुहिम में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अलावा कई कॉरपोरेट इदारों ने CSR के तहत दस्तयाब रकूमात मुहैया करके कॉरपोरेशन को अपना ताउन दिया। इस मुहिम में मुख्तलिफ बैंकों और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की कोशिशें काबिले जिक्र हैं। खूबसूरती की इस मुहिम के तहत जम्मू शहर में मुख्तलिफ दीवारों, हिफाजती बंड और फ्लाई ओवर के सुतूनों पर मुख्तलिफ किस्म की पेंटिंग्स बनाई जा रही है। इन पेंटिंग्स के जरिए जम्मू शहर के सकाफती विरसे और तहजीब व तमद्दुन के मुख्तलिफ गोशों को उजागर किया गया है। कॉरपोरेशन के हुक्काम का कहना है कि वो इस मुहिम को शहर के दीगर हिस्सों में भी शुरू कर रहे हैं। हर एक पॉकेट को लेके हमने उसके ऊपर फोकस करके वहाँ की कुछ ऐसे स्पेसेस जो कि यूटिलाइज की जा सकती हैं उनको भी हम अच्छे तरीके से जो है उसमें हमारी स्वच्छ भारत मिशन के तहत भी हम IEC एक्टिविटीज़ के अंदर भी हम कर सकते हैं। तो उसके ऊपर भी हमारी कमेटी बनी है, अभी गठित हुई है, उस पर भी हमें काम करना है एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट मोस्ट प्रोबेबली वार्ड वाइज। शहर को जाजिब नजर बनाने के इस अमल को लोगों की तरफ से काफी सराहा जा रहा है। नौजवान नस्ल इस मुहिम से सबसे ज्यादा मुतासिर है। इनका कहना है कि इससे न सिर्फ जम्मू शहर की खूबसूरती में इजाफा हो रहा है बल्कि जम्मू के तारीखी विरसे के बारे में भी जानकारी फराहम हो रही है। इससे क्या है कि हमारा जम्मू काफ़ी अच्छा दिख रहा है, हमारा जम्मू इससे खूबसूरत दिख रहा है।
हमारे जम्मू की से शान नज़र आ रही है। जिस तरह से इन्होंने हमारा इतिहास दोहराया है, हमारी हिस्ट्री दोहराई है। हम न्यू जनरेशन है, हमें इस चीज़ के बारे में कुछ पता नहीं है, कुछ नॉलेज नहीं है। यहाँ से हम देखते हैं, फिर हम जाके इस चीज़ को नेट पे सर्च करते हैं, जो कि हमें काफ़ी अच्छा लगता है अपनी जम्मू की हिस्ट्री के बारे में जानना। जैसे इन्होंने ये वाली पेंटिंग दिखाई है, ये वाली पेंटिंग काफ़ी अच्छा लग रहा है, इससे कलरफुल जम्मू दिख रहा है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो कोई गन डालने से भी डरेगा। अगर हम कोई यहाँ पे कुछ फेंकता है या गन फेंकता है या चुटकी खा के पान खा के कोई थूकता है तो मतलब अगला बंदा ये सोचेगा कि नहीं यहाँ पे कलरफुल पेंटिंग है या अच्छा है, तो ऐसा स्टेप नहीं करेगा। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हुक्काम की लोगों से अपील है कि वो इन पेंटिंग्स को नुकसान पहुंचाने से गुरेज करें। हुक्काम इन पेंटिंग्स को नुकसान पहुंचाने वाले अफराद और इदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात भी कर रहे हैं। खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब इदारों और अफराद के खिलाफ पहले ही जुर्माना आयद करने के नोटिस जारी किए गए हैं। जम्मू से कोमल मनहास की रिपोर्ट। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर आर के माथुर ने लेह का दौरा किया। उन्होंने कई मजहबी मकामात का दौरा किया। इनमें इमाम बारगाह, जामा मस्जिद, गुरुद्वारा, दतन साहब, दी चौकिंग विहारा और मोरवियन चर्च शामिल है। एलजी ने लेह के कई मजहबी रहनुमा और दीगर लोगों के साथ मुलाकात की। एलजी ने यहाँ लोगों में आपसी भाईचारे की सताश की। उनका कहना है कि लोगों में पाई जा रही हम आहंगी और रवादारी से लद्दाख तेजी से तरक्की की राह पर गामजन होगा। रोज पहले 2 मजदूर कश्ती डूब जाने की वजह से गर्क़याब हो गए थे। जुमेरात से तलाश के बाद भी दोनों की लाशें अब तक बरामद नहीं की गई हैं। 3 रोज से आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस, SDRF और माहिर गौताखोर इसकी तलाश में मसरूफ हैं। बताया जाता है कि महकमे आबाशी व फ्लड कंट्रोल की जानिब से होकरसर इलाके में एक कंपनी के जरिए ड्रेजिंग का काम किया जा रहा है। कई मजदूर इस काम को अंजाम दे रहे हैं। बताया जाता है कि जुमेरात की शब पटन से ताल्लुक़ रखने वाले माजिद लोन और उजर बारामूला के मोहम्मद असलम कश्ती लेकर जा रहे थे। इस दौरान होकरसर में दोनों डूब गए। दोनों जवानों के अहले खाना का कहना है कि जिस कंपनी के साथ ये मजदूर काम कर रहे थे वो सामने नहीं आ रही है। 2 फैमिलीज, पूरा खानदान परेशान है। ना कुछ यहाँ पे सिर्फ SHO साहब है और आर्मी के जवान है, वो काम कर रहे हैं, रेस्क्यू कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें फिलहाल कोई ऐसे सुराग नहीं मिला है जिससे हमें इत्मीनान हो जाए। कंपनी की तरफ से कोई आ गया है? कंपनी की तरफ से हमने ना आज तक देखा है कोई बंदा, ना कि उन्होंने कोई रेस्क्यू अपनी तरफ से चलाया है। यहाँ आर्मी का रेस्क्यू चल रहा है, SHO साहब का रेस्क्यू चल रहा है, बाकी कंपनी की तरफ से कोई भी लोग यहाँ पे नहीं आए हैं। और हमने ये भी सुना है जो इनका ऑफिसर है, उन्होंने जबरदस्ती उनको भेजा है काम पे। हालांकि ये जाने वाले नहीं थे क्योंकि फॉग थी, नाइट था, डार्क था, 12 बजे का टाइम था। तो कैसे इन्होंने इसको अलाउ किया है विदाउट बोटमैन, विदाउट सुपरवाइजर, विदाउट प्रॉपर गाइडेंस, कैसे इन्होंने अलाउ किया है? हम यही आपकी वसातत से उनको तक पहुंचाना चाहते हैं। प्लीज हमारी हेल्प कीजिए। आपकी वसातत से यही पूछना चाहते हैं, DC साहब से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहिए, कम से कम हमें कोई सुराग तो दे, ये कत्ल है क्या है। बृहस्पति दो शाम गई अत मज बृहस्पति पे आज गो करीब बटवार आतवार चंद्रवार आज गए 4 दो लोग 3 दो लोग पाकनी क्या वही तो कहीं ते ऐसे लाश बरामद गसन कहीं। हमें ये पता चला कि यहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ है तो अनफन हम यहाँ पर पहुँच गए। पिछले 3 दिनों से हमारा SDRF, आर्मी, SHO साहब जो भी हमारी जो भी हमारी फैसिलिटी है वो हमने पूरी यहाँ पर प्रोवाइड रखी है और जो हमें कोई इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुँचा देंगे। महकमे इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल की जानिब से यहाँ पे इस होकरसर में यहाँ पे ड्रेजिंग हो रही थी, जहाँ पे मजदूर काम कर रहे थे और 2 मजदूर जो किश्ती पे सवार थे और वो किश्ती बताया जा रहा है कि वो किश्ती डूब गई थी और आज चौथा रोज है वो उनकी तलाश भी जारी है। और अब देखना यह है कि कितनी देर तक उनकी जो उन 2 नौजवान की लाशें जो हैं वो बरामद हो पाएंगे कि या नहीं। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, होकरसर, HMT। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से खन्नाबल में एक इजलास मुनक्किद किया गया। बीजेपी ने यह इजलास पार्टी में नए कारकुनों की शिरकत के सिलसिले में शमूलियत के सिलसिले में मुनक्किद किया था। कई अफराद ने बीजेपी का दामन थामा। बीजेपी के नायब सदर सूफी मोहम्मद यूसुफ का कहना है कि पंचायती नुमाइंदों को उनका जायज़ हक मिलना चाहिए। उनका कहना है कि पंचायती नुमाइंदों की सिक्योरिटी के हवाले से भी सरकार को खातिर ख्वाह इक़दाम उठाने चाहिए। उन्होंने तेलंगाना में इस्मत रेजी के सभी मुलजमीन के इनकाउंटर की हिमायत की। सूफी यूसुफ का कहना है कि सरकार को ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए सख्त इक़दाम उठाने चाहिए। मैं आपकी वसादत से लेफ्टिनेंट जनरल गिरीश चंद्र मरमू जी से गुजारिश करूंगा कि इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स, इनके सिक्योरिटी का ख्याल और इनका तनख्वाह जो इनका मैकूल तनख्वाह नहीं है उसको बढ़ाया जाए और जितने भी फंड्स वागुजार हुए और हो
ताकि रियासत जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हो। मैं मरकजी सरकार से गुजारिश करूंगा, निर्भया केस के मामले में जिसको 7 साल अभी कोर्ट में लगे हैं, उन गुनाहगारों को भी फांसी दी जाए और जल्द अज जल्द वो फांसी उनको सुनाई दी जाए, और इसके खिलाफ कानून सख्त करें कि अगर कहीं रैप होता है किसी बेटिया के साथ, किसी बहन के साथ, उस बेदर्दाना इंसान को सीधा फांसी की सूली पे चढ़ाना चाहिए। बीजेपी की जानिब से मेहमा काजीगुंड में एक मीटिंग मुनक्किद हुई। पार्टी के सीनियर लीडर आबिद हुसैन खान के अलावा दीगर वर्करों ने शिरकत की। कई सियासी कारकुनों ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। वर्करों पर जोर दिया गया कि वो पार्टी को मजबूत बनाएं और अवामी मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करें। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये देख के लोगों को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वाकई गरीबों की पार्टी है। गरीब आवाम के लिए शान बशान साथ चलने की तैयारी कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि लोग जोग दर जोग पार्टी से जुड़ेंगे और आने वाले समय में जिन्होंने कश्मीर को लूटा है, गरीब आवाम को लूटा है, उनके दरवाजे बंद हो जाएं। हैदराबाद में मुकीम कश्मीरी पंडितों ने हैदराबाद में एक हवन का एहतमाम किया। आलमी अमन के लिए एहतमाम करदा 2 रोज़ा खुसूसी हवन और पूरन आहुति पूजा में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। कश्मीर में अमन अमान की बहाली और कश्मीरी पंडितों की वादी वापसी के लिए ख़ास तौर पर इस हवन का एहतमाम किया गया था। कश्मीरी समाज हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम इस हवन में हैदराबाद और आसपास रहने वाले सैकड़ों लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उन्होंने पूजा पाठ में शिरकत की। इसका इनकाद हैदराबाद के मज़ाफ़ात नारसिंगी इलाके में कायम अमृत धाम आश्रम में किया गया था। आज जगत कल्याण यज्ञ कर रहे हैं, जो हमने कल से स्टार्ट किया है और अभी पूर्ण आहुति हो रही है। तो इसका मतलब यह है बेसिकली कि हम एक तो अपने धर्म से कनेक्टेड रहे और दूसरा विश्व शांति के लिए हम एज ए कश्मीरी पंडित कंट्रीब्यूट करें। तो जगत कल्याण के लिए ये यज्ञ हो रहा है, जिसमें हम हर एक भगवान की आहुति करते हैं। जैसे गणेश जी की हुई, शिव जी का हुआ, नवग्रहों का हुआ, नारायण का हुआ, शिव जी का हुआ, तो सभी भगवानों की आहुति, पूर्ण आहुति करते हैं ताकि विश्व में शांति रहे, विश्व कल्याण रहे। लट्टी उधमपुर में किसान मेला कम फ्रूट शो का इनकाद किया गया। महकमे बागबानी की जानिब से मुनक्कदा जिला सतह के इस मेगा शो में 1000 के करीब किसानों ने शिरकत की। खासी तादाद में काश्तकारों ने भी इसमें हिस्सा लिया। इस मौके पर हाजरीन को मरकजी हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमों और जदीद टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी दी गई। एडीसी उधमपुर गुरविंदरजीत सिंह इस मौके पर मौजूद रहे। किसानों ने महकमे के इस इक़दाम की सताइश की। मेरा नाम अनंतराम रिटायर्ड मास्टर हूँ, डुड्डू से हूँ। बिली डुड्डू है, तहसील ये लाठी बनोटी है। मैं आज के लिए मैं ये कहता हूँ, मैं जो रिटायर का 41 साल की मेरी सर्विस हुई, पहली बार जो है इसमें ये देखा गया और बहुत खुश हूँ मैं। और इसमें जो देखा कि हमने कुछ ऐसी चीज़ें, मेरी भी ख्वाहिशात थी, मैं भी जिम्मेदार हूँ, जिसमें ये देखा मैंने कि कुछ मशरूम के लिए मेरी ये कुछ ख्वाहिश थी कि ये ऐसा ही होना चाहिए। कमिश्नर सेक्रेटरी PHE खुर्शीद अहमद ने बदून क्रोशर सड़क का इफ्तिताह किया। राजौरी दौरे के दौरान कमिश्नर सेक्रेटरी ने राजौरी से बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी तक डबल लेन सड़क की तामीर का संग बुनियाद रखा। गनाई का कहना है कि इन प्रोजेक्टों से राजौरी में माशी और इक़्तिसादी फ़वायद हासिल होंगे। इस मौके पर चीफ इंजीनियर PWD, SEPWD, EE समेत कई आला अफसरान मौजूद रहे। अपने 3 रोज़ा पुंछ दौरे के दौरान कमिश्नर सेक्रेटरी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट खुर्शीद अहमद ने ज़िले के सुरनकोट तहसील का दौरा किया। उन्होंने डाक बंगलों में बनाए गए VIP सूट का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने लोगों के कई वफूद से भी मुलाकात की और उनके मुतालबात को सुना। लोगों ने इलाके में PWD की सड़कों की खस्ता हाली की जानकारी देते हुए सड़कों की मरम्मत और इलाके में नई सड़कों की तामीर की भी मांग की। उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि इलाके में ज़र तामीर जारी कामों को जल्द ही आवाम की सहूलत के लिए मुकम्मल किया जाएगा। लेह में एक हफ्ते से जारी मतरूंदा सप्ताह आज DC ऑफिस लेह में इख्तिताम पजीर हो गया। इस प्रोग्राम का उन्वान सुरक्षित जनाई विकसित धारनी था। जिला मजिस्ट्रेट लेह सचिन कुमार ने महकमे सेहत और
ICDS کے سٹاف اور ورکروں کی ستائش کی. انہوں نے کہا کہ اس طرح کے پروگرام کا اہتمام سال بھر ہونا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ حاملہ خواتین کو اس سے فائدہ ملنا چاہیے. انہوں نے یہ بھی امید جتائی کہ PMMVY اسکیم کے تحت ہر آنگن واڑی ورکر زیادہ سے زیادہ حاملہ خواتین کو جوڑ دیں گی. انہوں نے اس بات کی بھی یقین دہانی کرائی کہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے PMMSVY اسکیم کو کامیابی کے ساتھ ضلع میں لاگو کیا جائے. تاکہ جنہوں نے میکسیمم کیا مجھے امید ہے سبھی لوگ اپنے اپنے ایریاز میں میکسیمم انرولمنٹ کریں گے اور باقی میری طرف سے آپ کو جو بھی ہیلپ چاہیے وہ میں ایک دم پورا آپ کو سپورٹ کروں گا. اور آپ جو اپنے گاؤں میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں زیادہ کچھ نہیں ہوتا لیکن اگر آپ کا انٹروینشن رہے گا لوگوں کو تک یہ اسکیم پہنچے گی تو لوگوں میں مطلب جو خاص کر پریگننٹ لیڈیز ہیں ان میں اویئرنیس ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ ان کو جو اسکیم کا بینیفٹ ہے وہ SSP شری رام امبارکر کی سربراہی میں بینائی سے محروم درجنوں افراد میں مختلف آلات تقسیم کیے. اس سلسلے میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا. بینائی سے محروم افراد کو اسمارٹ فون چلانے اور اپلائنسز کے حوالے سے ڈیمو پروگرام پیش کیا گیا. SSP نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ بینائی سے محروم افراد بھی باقی لوگوں کی طرح ان چیزوں کا استعمال کریں. مستفید افراد نے پولیس کے اس اقدام کی ستائش کی. اس کا سیوک ایکشن پروگرام کے تحت کچھ اکوپمنٹ ہم نے آج ان دیویانگ لوگوں کو دیے ہیں جس میں کلکتہ سٹائل کی کلکتہ ماڈل کی ایک واکنگ سٹک ہے. اس کے علاوہ بریل کی کتابیں ہیں, بریل کی ایک سلیٹ ہے جس سے لکھا جاتا ہے. اس کے علاوہ کچھ جو ہمارے نوجوان لڑکے ہیں جو ہائر اسٹڈیز کر رہے ہیں اور جو فون کا استعمال جانتے ہیں تو ان کے لیے ہم نے اسمارٹ فونس آج جو ہے ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں. اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے ایسے لوگ ہیں جو جن کو درشٹی بادھت لوگ ہیں جن کو نظر نہیں آتا ہے وہ اپنی پڑھائی پوری کر پائے, سماج میں کندھے سے کندھا ملا کر چل پائے. اس کا ہم انتہائی شکر گزار کرتے ہیں SSP صاحب کا اور ان کی ٹیم کا جنہوں نے یہ ایفرٹ کیا. میرا بھی تھوڑا اس میں ہاتھ رہا تو میں نے اپنی طور سے کوشش کی کیونکہ میں بھی پرسن وتھ ویژن امپیئرمنٹ ہوں اور میں نے دنیا کے لیڈنگ انسٹیٹیوٹ انیبل انڈیا سے ٹریننگ حاصل کی. تو ماڈرن ٹیکنیکس کے بارے میں کمپیوٹر ہو, موبلٹی ہو, امپلائبلٹی ہو, لائف اسکل ہو, اور ہم نے ان کو تھوڑا ڈیمو بھی دے دیا. یہ چیزیں ساتھ نہیں دی بلکہ ڈیمو بھی دے دیا کہ کیسے آپ ان چیزوں کا استعمال کریں. چلی بلسا میں فوج کی 4 RR کی جانب سے مفت طبی کیمپ منعقد کیا گیا. اس میگا کیمپ میں ماہر ڈاکٹروں کی اسپیشل ٹیم نے 400 سے زائد مریضوں کا علاج کیا. طبی کیمپ میں لوگوں کو مفت ادویات بھی فراہم کی گئی. طبی کیمپ لگانے کا مقصد دور افتادہ علاقوں کے غریب عوام کو بہتر طبی سہولیات فراہم کرنا ہے. بلسا کے لوگوں نے فوج کے اس اقدام کی ستائش کی. نومبر ماہ میں متوقع برف باری سے ضلع پلوامہ میں دیگر صنعتوں کی طرح بھی نہل پروری کو بھی نقصان پہنچا ہے. برف باری سے کافی تعداد میں شہد کی مکھیاں مر گئی ہیں. وادی کشمیر میں صنعت سے وابستہ افراد سرما میں شہد کی مکھیوں کو بیرون وادی لے جاتے ہیں. اس مرتبہ وہ ایسا نہیں کر پائے ہیں. متعلقہ حکام کا کہنا ہے کہ صنعت کو نقصان کے بارے میں ابھی تک محکمے کو کوئی بھی اطلاع نہیں ہے. ایسے باغات کے سیبوں کو کی طرف گورنمنٹ نظر ڈالتے ہیں, ان کو معاوضہ دیتی ہے, مگر ہماری طرف کوئی دھیان نہیں دیتے ہیں یہ گورنمنٹ. اگر ہمیں گزارش کرتے ہیں کہ اگر ہمیں یہاں آئیں گے اور مکھیوں کو دیکھیں گے, پیٹوں کو دیکھیں گے کتنا نقصان ہوا ہے ہمارے ساتھ. تھوڑا بہت کسی نے لیتلال کیا وہ مائگریٹ نہیں کیا اس کا تھوڑا بہت نقصان ہو سکتا ہے, ادروائز کوئی نقصان نہیں ہے ہمارے اپیلیز میں. کیونکہ نقصان ہمارے پاس کچھ ہے نہیں, بالکل جو ہم منیمل ہو سکتا ہے اتنا نہیں ہے جس کو ہم کوئی یہ دے سکتے ہیں, اس کے لیے کوئی پیسہ دے سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے مائگریشن کی تھی آلریڈی. تو ہاں میں یہی کہتا ہوں اگر کوئی ایسا کسان ہو سکتا ہے کوئی کسان رہ گیا ہو. میکملان انڈیا ایجوکیشن سروسز کی جانب سے ایک میوزیکل کنسرٹ کا انعقاد کیا گیا. اننت ناگ کے ایک نجی اسکول کے اشتراک سے اس کا انعقاد کیا گیا. کنسرٹ کا مقصد وادی میں موجودہ حالات میں نوجوانوں کے ڈپریشن کی شرح کو کم کرنا تھا. اس موقع پر FRK بینڈ کے علاوہ کئی نوجوان فنکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا. اس طرح کے پروگراموں کو وادی کے نوجوان فنکاروں کے لیے ایک مناسب پلیٹ فارم قرار دیا گیا. کئی مہینوں سے بچے ڈپریشن میں آ چکے ہیں
اور انٹرٹینمنٹ کا کوئی مین ہی نہیں ان کے پاس، کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے، انٹرنیٹ کٹا ہوا ہے. تو ہم نے کہا کہ اس ڈپریشن میں اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے ہنسے، گائیں اور کھل کے گائے تو. جموں کی وراج آرٹ گیلری کی جانب سے سولو شو نمائش کا انعقاد کیا گیا. اس نمائش میں جموں کشمیر کے معروف مجسمہ ساز گھنشیام شرما کے بنائے مجسموں کی نمائش کی گئی. اس دوران معروف مجسمہ ساز ویدیا رتن کی یاد میں اس نمائش کا انعقاد کیا گیا تھا. راج بھارتی سمیت کئی مشہور فنکاروں نے سولو شو نمائش کی ستائش کی. شری ودیا رتن کھجوریا جی کا دن جو ہے وہ منا رہے ہیں. وہ ایک بہت ہی بڑے جموں کشمیر کے کہہ سکتے ہیں پورے انڈیا کے جو ہیں وہ بہت بڑے اسکلپٹر تھے، کلاکار تھے، جنہوں نے جموں کشمیر میں اسکلپچر کے لیے ایک موومنٹ پیدا کی اور کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسکلپچر کے فاؤنڈر جو تھے جموں کشمیر کے. تو انہی کی یاد میں جو ہے آج میں نے یہاں ایک سولو شو ایگزیبیشن اپنے اسکلپچرز کی رکھی ہوئی ہے اور ان کا دن منا رہے ہیں. بلسا میں ریٹائرڈ ٹیچرز فورم کی یونٹ نے مرحوم غلام قادر بانی اور انجہانی تارا سنگھ کی یاد میں ایک سیمینار منعقد کیا. مرحوم غلام قادر بانی کو 29 جون 1999 کو ملیٹنٹوں نے گولی مار کر شہید کر دیا تھا. اس موقع پر مقررین نے دونوں کی زندگی، کارناموں اور تعلیمات پر روشنی ڈالی. زونل ایجوکیشن افسر بھیلسا کی صدارت میں یہ سیمینار منعقد کیا گیا. ایس ڈی پی او بھیلسا اس موقع پر بطور مہمان خصوصی موجود رہے. اساتذہ اور دیگر لوگوں کی خاصی تعداد نے شرکت کی. پونچھ کے ڈاک بنگلوں میں ہمدرد ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے ایک روزہ کل ہند مشاعرے کا اہتمام کیا گیا. پونچھ کے معروف مصنف اور شاعر بشیر حسین بٹ کی یاد میں مشاعرے کا اہتمام کیا گیا. پروگرام میں ضلع پونچھ کے علاوہ دہلی، چندی گڑھ، رامبن، بھدرواہ اور راجوری سے شعراء نے شرکت کی. شعراء نے اپنے اپنے کلام پیش کرتے ہوئے بشیر حسین بٹ کو خراج عقیدت پیش کیا. مشاعرے کی صدارت ہمدرد ویلفیئر سوسائٹی کے چیئرمین عباس ملک اور بشیر احمد بٹ کے بھائی احتشام بٹ نے کی. مشاعرے کا ہمارا جو پورا ہم کروا رہے ہیں، یہ ہم ادب کی ریلیٹڈ جو لوگ مطلب ادب سے دور تھے، ہم اس کو ادب سے کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں. ہمارا یہ مقصد ہے. اور اینٹی جو مطلب ڈرگس کے ساتھ جو لوگ نوجوان جا رہے ہیں، ہم ان کو بھی یہاں سے اسٹیج دیتے ہیں. ہم نے 4-5 نئے جو ہمارے شعراء ہیں، ہم نے ان کو بھی انٹروڈیوس کیا ہے اس اسٹیج میں کل ہند مشاعرے میں. اس میں علینا عطرت صاحبہ بھی آئی ہیں جو دہلی سے ہیں، بہت بڑی پوئٹ ہیں. ہم ان کو بھی آنر کر رہے ہیں. اپنی آرگنائزیشن کا جو ایوارڈ ہے ہمارا لائف ٹائم ایکسیلنس، اور اس پورے ہم ایک 1.5 مہینے سے تیاریاں کر رہی ہیں. کل ہند مشاعرے میں ہمارے 5 سے 6 شاعر جو ہیں بیرون ریاست لدھیانہ، پنجاب، چندی گڑھ سے آئے ہیں اور دہلی سے بھی آئے ہیں.